ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਐਂਡ 23 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਦੋਂ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਟਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਨਲੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਰਹੂੰਗੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਨਲੋਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ 3-4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੋਇਆ 23 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਰੋ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ, ਪੀਕੌਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਕਿਟ ਸਵਰੂਪ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਲਾਈਂਗ ਕੀਸੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਲੀ ਧੀ ਰਾਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗਣਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुकराना दाता। तेरे चरण कमलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मैं जम्मू से बोल रही हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मैं आपका सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं आपके साथ ऐसे जुड़ी हूँ। मुझे तो अभी 23 नवंबर को ही हुई जुड़ी हूँ आपके साथ अच्छी तरह। वैसे आपका मैंने बहुत कुछ सुना था, गुरु जी हैं, ये है वो है, ऐसे वैसे। जो मेरी बेटी है उसकी बुआ है जो, वो आपको मानते थे, तो उसने मेरी बेटी को, उसकी बुआ ने बोला कि मेरी बेटी को आप इसको माना करो, इसको प्रणाम करा करो, बहुत शांति मिलती है। तो बेटी मेरी ने बहुत दिन से यही सोचती रही कि मुझे बुआ ने बोला है इसको माना करो, वो करना, मुझे ना ये फ़ोटो, गुरु जी का फ़ोटो मुझे गिफ्ट करना, वो है वो है। ये कितने दिन घर में ही परेशान रही, टाइम नहीं मिला इसको। तो फिर ना ये बोलने लगी, मम्मा मुझे गुरु जी का ना फ़ोटो फ्रेम करना, बुआ को गिफ्ट करना है दिवाली के ऊपर। दिवाली थी, कोई त्यौहार था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो निकाल देना, तो दे देना गिफ्ट। तो फिर ये गई, तो फिर इसने ना, मेरी बेटी ने ना, फिर वो गिफ्ट निकाला, गुरु जी के स्वरूप निकाला, फिर मतलब इसको फ्रेम करके लाया। फिर उनके घर में अभी नहीं गई थी, फिर मैं इनके घर, बेटी के घर में गई, तो मुझे इसने निकाल कर दिखाया। बोलती ये देखो मम्मा ये गुरु है। मैंने कहा हाँ ये बहुत मतलब अच्छे हैं, नहीं अगर ये अगर सब सुनते हैं तो अच्छी बात है। तो मैं
बोलते हैं ये खुद कोई गिफ्ट दो देते हैं तब तभी रखते हैं। मैंने कहा कोई बात है, कुछ नहीं होता है, तो तू दे दे गिफ्ट। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद घर में आ गई। मैं घर में आई तो 2-3 दिन हुए तो मेरी ना दोहतरी, मेरी बेटी की बेटी छोटी है, 4 साल की है, तो उसने मुझे फ़ोन किया तो मुझे बोलने लगी नानी नानी आपके घर में गुरुजी हैं। मैंने कहा बेटा मेरे घर में गुरुजी नहीं है। बोलती नानी जी हमारे घर में भी नहीं गुरु हैं। मैं कहा कोई बात नहीं। बोलती नानी जी आप हमें गुरु दे दो तो हम आपको गुरु लेकर देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं लाऊंगी आपके लिए गुरुजी। तो दिवाली के 2-3 दिन पहले में मैंने कहा मैं जाऊंगी बाजार तो लाऊंगी स्वरूप। तो मैं गई बाजार में, पहले इनके घर गई बेटी के घर में, फिर बाजार गई, उधर से लाया मैंने स्वरूप दो, एक रेड कलर का एक येलो कलर का। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह मतलब पैक कर कर दिया अखबार में। तो मुझे पता था रेड इसको चाहिए होगा, येलो मैं ले लूँगी। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने लिफाफे में दोनों स्वरूप डाले थे तो मुझे गुरुजी का वही स्वरूप हाथ में आया जो मैंने अपनी बेटी को देना था। तो मैं उसको बोलती हूँ तू ज़रा खोल के देख ले, तो तेरे लिए रेड लाया है, मैंने अपने लिए येलो लाया है। तो बोलती मम्मा क्या खोलना है, तो रहने दो क्या खोलना है इसको। इसने जैसे खोला वो रेड कलर का उनके पास ही स्वरूप गया। अच्छा ठीक है। आ गई मैं घर में। आ गई तो 3 दिन थे दिवाली के, 3-4 दिन थे, वो निकल नहीं रहे थे। मुझे इतनी तलब थी कि मैं गुरुजी की फ़ोटो लगाऊं पूजा रूम में। बस वो अखबार लगाई थी उसके ऊपर, उसकी मत्था टेकती अपने साथ रखती, उनको पूजा करती थी। फिर जैसे दिवाली आई तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अच्छी तरह मंदिर शंदिर साफ सूफ किया। फिर मैंने कहा चलो कहाँ लगाएं, कुछ समझ नहीं आ रही थी, कमरे में लगाएं जहाँ पूजा रूम में लगाएं, कहाँ लगाएं, परेशान हो गई हूँ मैं। कहाँ ठीक लगेगा, किल नहीं लगेगा, इधर वो है टाइल लगी है पूजा रूम में। तो मैंने सासंग मैंने बहुत मेहनत मारी, इतनी मेहनत मारी किल लगाने की। मैंने किल लगाने की मेहनत मारी, नहीं लगा मेरे से किल। मतलब स्वरूप लगाना था मैं बहुत परेशान हो गई। 2-3 दिन रही मैं किल लगाने के लिए, नहीं। तो मैं बड़ी परेशान, दिवाली वाले दिन की बात थी। फिर मैंने कहा फिर लगाना भी जरूरी, डर के मारे मैं अपने घर वाले को भी नहीं बोल सकती भाई ये क्या करूँ क्या नहीं। तो मैं बोला उनको कि ये मुझे बोल रहे थे लगा ले तू कहाँ मैंने कहा कहाँ रखूँ कहाँ लगाऊँ क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा इधर आओ 1 मिनट। बोलते हाँ जी। मैंने कहा कहाँ लगाऊँ, बोलते इधर लगा, सामने लगा, नहीं इधर लगा, जहाँ तेरी मर्जी है। मैंने कहा किल नहीं जा रहा है अंदर, किल नहीं हो रहा, मैं कैसे लगाऊँ, मैं बड़ी परेशान हो गई, 3 दिन हो गए। बोलते कोई बात नहीं तू ला वो मैं लगाता हूँ किल। मैंने दिया इनको, किल भी दिया वो भी दिया लगाने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने किल लगाया तो जैसे ही इन्होंने लगाया तो इनके हाथों से लग गया। तो मैं बोलने लगी इनको, मैं कहा देखो मुझे 3 दिन हो गए, मैं इतनी परेशान हो गई, किल नहीं लग रहा था, ये आपके हाथों से ही किल लगना था। तो आप ही के हाथों से ही सब कुछ होना था, तभी ये नहीं लग रहा था किल। तो फिर बोलते कि शायद होगा कोई ऐसी। फिर मैंने इन्होंने बोला लगा आप तो इनको स्वरूप लगा तो पूजा करेंगे हम शाम को। अच्छा। फिर मैंने लगा दिया स्वरूप। उसके बाद जब मैंने स्वरूप लगाया, फूल शूल चढ़ाए चढ़ाए सब कुछ रखा, वो कड़ा बनाया, प्रसाद बनाया, चढ़ाया चढ़ूआ, 3 फूल लगाए, 2 गुट्टे के फूल लगाए, एक कमल का फूल लगाया गुरु जी के आगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो हो गई जोत शोत बंद हो गई, तो मैंने पर्दा बंद कर दिया। मैंने कहा बाद में खाएंगे प्रसाद, कोई बात नहीं, चढ़ाया अभी टाइम थोड़ा रहने दो। तो जैसे शाम के मैंने उठाना क्या था, जब मैं सुबह उठी तो मैं देख रही हूँ एक फूल इधर गणेश के और शिव जी के बीच में पड़ा है, एक फूल प्रसाद में पड़ा है, कड़ा प्रसाद में पड़ा है गुट्टे का। मैं बोलती हूँ ये कैसे आ गया, क्या हुआ पता नहीं, ऐसे कैसे आ सकता, ऊपर से नीचे गिरा, सीधे कोली में है, एक बीच में शिव जी और गणेश में बीच में बड़ा सीधा फूल है। मैं बड़ी परेशान हो गई। फिर मैंने इनको बताया तो बोलता पता नहीं हो सकता है भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया होगा, क्या नहीं क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा ये तो गुरु जी को ही पता होगा। तो जैसे मैंने लाइटें शाइटें जलाई तो मुझे गुरु जी का स्वरूप ही
ऐसे चमक मारे मैं परेशान हो गई हूँ। मैं बोलती मेरे वहम है, मैंने कहा शायद लाइटें चल रही हैं उसके साथ हो रहा है। चुप रही। फिर ऐसे 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 निकलते रहे, 3-4 दिन निकलते रहे। तो अब मेरे साथ ये बार बार हो रहा है। जब मैं पूजा रूम में जाती हूँ, पूजा करती हूँ, गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, तो मैंने ना उधर बेलें लगाई हैं उनके आगे पीछे। मैंने 2 इधर लगाई, एक बड़ी लगाई है, मतलब 3 बेलें हैं। जो नुक्कड़ वाली बेल है ना, वो मुझे बार बार हिलती है, और वो लाइट है वो हिलती दिखाई देती है। बेल तो हिलती है, पूरी बेल हिलती है, पर मैं सोचती नहीं मेरा वहम है, वहम है। गुरु जी अगर आपने मुझे दर्शन देने हैं, बड़े दर्शन दो, बड़ी बरसात करो मेरे घर में, जो दुनिया देखे। तो मेरे दिल में यही वहम है। हो गया, ऐसे चलता रहा, चला चाय प्रसाद कुछ कुछ चढ़ाती रहूं। मुझे कुछ नजर नहीं आता था। मैं क्या गुरु जी, सभी को आप दर्शन दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो आप? अच्छा, आज आज है 20 नवंबर की बात है। तो जब मैंने सोचा कि नहाया धोया, काम शाम ख़त्म किया, तो मैंने कहा चलो पहले गुरु जी को पहले प्रसाद चढ़ाऊँगी, तो फिर खाना बनाती हूँ, तो फिर मैं चलो चाय उठा कर चाय प्रसाद पी लूँगी, ठीक है। तो पहले मैंने चाय प्रसाद चढ़ाया, गुरु जी को चढ़ाया, रास चढ़ाए, और वो चाय प्रसाद बनाकर चढ़ाया। इतनी देर में मैंने फुल्के शुल्के बनाए, सब कुछ काम किया, ख़त्म शत्म, अपना नाश्ता लेके अंदर आई, तो चाय डाली अपने उधर, तो देखा तो मुझे चाय के अंदर गुरु जी के दर्शन। मैंने कहा गुरु जी आपने ये दर्शन दे रहे, मुझे समझ नहीं आ रही है किस चीज़ के दर्शन है ये। कभी गुरु जी अपने दर्शन दे रहे, फेस के दर्शन दे रहे, कभी मुझे शिवलिंग के दर्शन दे रहे, पर तब भी मुझे समझ नहीं आया है। उठाई मैंने चाय, फिर अपनी चाय में मिक्स की, मैंने गर्म तो करनी नहीं थी। फिर मैंने चाय उठाई, फिर मैंने अपने डाली, फिर मैंने वो ब्रेड खाई चाय के साथ, तो बड़ा मज़ा आया। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे अगर आपने दर्शन देने हैं, अच्छी तरह दर्शन दो मुझे, कि दुनिया देखे, बरसात इतनी करो कि दुनिया देखो। मैं वही बोलती हूँ गुरु जी हमारे सारे दुख दूर करना, हमें सुख शांति में। यही बार बार मुझे मैसेज, क्यों टेंशन रहती है तू, क्यों टेंशन रहती है, क्यों टेंशन। गुरु जी ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन संगत जी ये सोचती हूँ, मतलब मैं शुक्राना बार बार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जब से मैं जुड़ी हूँ, मुझे अपने आप को बहुत मन में शांति होती है, बहुत। गुरु जी हर वक्त मुझे बोलते तू टेंशन मत ले, तू मत टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और बार बार गुरु जी मुझे ऐसे स्क्रीन पे आते, जैसे टीवी की स्क्रीन होती है ना, जैसे सोती हूँ मेरे सामने दीवार है मेरे घर के अंदर ही, तो वो ऐसे चलते हैं जैसे स्क्रीन के ऊपर, हर रूप में हर ड्रेस में चलते हैं गुरु जी, ऐसे दिखाई देते हैं कि बार बार, मतलब रात को सोने के बाद भी। तो सुबह जैसे कभी होता है कि 4 बज गए हैं, 4:30 बज गए हैं, ऐसे आवाज़ आती है उठो सत्संग सुनो, मेरा मेरा सत्संग सुनो, उठो। कभी कई बार उठ जाती हूँ, लगा लेती हूँ कान को, तो सुनती रहती हूँ गुरु जी के। गुरु जी बार बार ऐसे लगते हैं कि मेरे साथ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी लापी में दिखाई देते हैं, ऐसे आँख बंद करती हूँ, इधर खड़े हैं, कभी इधर खड़े हैं। सचा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बार बार यही बोलती हूँ गुरु जी शुक्राना, गुरु जी मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी ऐसा दर्शन दो कि दुनिया देखिए सत्संग। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी मैं भी आप अपना सत्संग खत्म करना चाहती हूँ, माफ़ करना अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना।